नहीं नहीं, तबीयत एकदम ठीक है। ये हील हो चुका है, यहाँ मुझे फ्रैक्चर हुआ था, वो अब हील हो चुका है। एवरीथिंग इज आउट एंड आई एम बैक टू वर्क। तो हाँ जी, सॉरी मैं देखिए, सबसे तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, ओके, सबसे खुशी की ये बात है कि इस किस्म का एक फेस्टिवल यहाँ हो रहा है। और आज मैंने आके जो देखा है, जो एक फेस्टिव माहौल बना हुआ है यहाँ पे महबूब स्टूडियो में, मुंबई जो जहाँ मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा सिनेमा बनता है, वी मेक द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड, वहाँ ऐसे तो कई फेस्टिवल्स होने चाहिए। तो ये एक मामी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी लोगों ने इसमें मेहनत की है, अनु ने, किरण ने, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको थोड़ा एक फेस्टिव फीलिंग देने की कोशिश की। बड़े बड़े फिल्में आए हैं, बड़ी फिल्में आई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि जहाँ इतना सिनेमा बनता है वहाँ तो ऐसे कई फेस्टिवल्स होने चाहिए। सर, अभी किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि पता नहीं चल रहा है, कभी रणवीर की बात आती है, कभी संजय दत्त की बात आती है, तो एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में? नहीं, फिलहाल हम स्क्रिप्ट वाइज तो हम कई फिल्मों पे काम लिख रहे हैं। जो एक रेडी हो चुकी है वो संजू की बायोपिक है, वो रेडी हो चुकी है। वो अगले साल होपफुली हम शूटिंग शुरू करेंगे। मुन्ना भाई पे भी एक काम कर रहे हैं। कई सालों बाद एक ऐसा स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि हमको मिला है जो हम जो उस लेवल का है। यानी हमने इस वक्त इतने साल मुन्ना भाई इसलिए नहीं बनाई कि हमें लगता था कि उसको बीट करना चाहिए, जो हमने पहले बनाया उससे बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनाने का। तो अब कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिला है जो लगता है कि उस कैलिबर की फिल्म बन सकती है। So, so See, it was, I think, a very pompous topic to, say, how do you write a blockbuster? We didn't even know it was titled like that till we came here, and we were shocked. Very honestly, I think none of us know how to write a blockbuster. And the first thing is, as we said in the session inside, that the first thing you should do is not to attempt to write a blockbuster. The moment you attempt to write a blockbuster, you're trying to say, okay, I know what that person like, I know what that person like. You have to make a film for yourself, what you like, and then hope that the rest of the world like it, because you will be able to do a good job of what you like. The moment you attempt to do what somebody else likes, you will fail. Inside you said that you were a little skeptical, if you can say so, while writing a biopic on Sanjay Dutt, especially the underworld part. Can you say a bit more on that and what exactly said that you should go ahead and write the script and make a film eventually? I think we'll let the film come. The film is far off. But only thing I can say is, yes, I was skeptical because I said that's a world it's not one of my favorite worlds. But the moment I heard that story, Abhijat and me sat with him for 25 days and I discovered that this is a story which we want to say because it's a human story. It's hugely entertaining. I think it's probably the most entertaining film we would ever do. It's emotional. It's got a lot of funny moments. It's a human story. It's a story about father, son, his friends, his world. So it's a story which is completely in the same league as the kind of cinema we've done. So would you be a little biased towards... No, sorry, go ahead. So would you be a little biased considering that, I will not be biased because that was my go ahead, first... No, I cannot... I have always said, in every interview I've said that the film is not intending to glorify him at all. So it's not only Sanju, we've met 10,000 other people and I will never in my life make a film. Film is spending 3 years of a life on something. I can't make a film to glorify somebody. Never. I will make a film which is honest. Otherwise, I can make a film every year. I take 5 years to make a film. And if I'm going to spend so much of time, I don't need to. We have other scripts. There's no need for me to make this film. The only reason we're making this film is because it's a great story. I was just adding to that, one of our abiding principles is that every scene that we write should have LCD, laughter, crying or drama. That's a principle that we have followed for 10 years. That in our films, you will not see scenes which are not entertaining or moving or have great drama. And in
of all the films that we have written, we felt that in Sanju's life, every scene has that quality. There's either huge laughter or crying or drama. अभिजात, मेरा सवाल ये है कि लेखकों की बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है, तो इसमें एक किस्सा जुड़ा हुआ था पीके से कि जो इंसेप्शन के करीब करीब स्क्रिप्ट पहुंच चुकी थी और फिर आपको दोबारा लिखना पड़ा। तो एक लेखक के बतौर या जब फिल्म लिखते हैं तो वो एक इनर जर्नी क्या होती है? क्योंकि कई बार होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से उड़ाते हैं, कोई इंसिडेंट आपको याद होता है, तो जब वो फिल्म पूरी बदलनी पड़ी तो क्या फ़र्क पड़ा फिल्म पे? फिल्म पे असर तो ज़रूर पड़ा, क्योंकि हमने तकरीबन 1 साल काम किया था। 1 साल के बाद हमें पता चला कि हमारा जो आइडिया था जिस पे हम काम कर रहे थे, वो इंसेप्शन जो फिल्म आई, हम देखने गए तो हमें लगा कि ये फिल्म तो वैसी ही है काफ़ी हद तक। तो हमें लगा कि ये अगर 1 साल हमने मेहनत की है, लेकिन अगर ऐसी की ऐसी फिल्म जाएगी तो लोगों को लगेगा कि हमने इंसेप्शन से इंस्पायर होके लिखी। तो एक उसका सदमा तो पहुंचा ज़रूर, लेकिन फिर हम और उसे कैसे पेश करने लगे इसी आइडिया को, क्योंकि हम आइडिया में हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रांग था कि हमें यकीन था कि ये अच्छा आइडिया है, ये एक एलियन आता है और रिलीजन को देखता है, ये ग्रेट आइडिया है, तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, तो किसी और ढंग से उसे पेश करें। तो उसमें काफ़ी टाइम गया, 2 साल और लग गए फिल्म। सर, हम लोग ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म क्या है? वो जो खूब करोड़ों में कमाती है, या वो जो लोगों के दिलों को छूती है? बिकॉज हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो पैसा कमाती हैं बट लोगों के दिलों को नहीं छू पाती या लोगों से इतना याद नहीं रखते, और कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रखते हैं बट वो शायद बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाती। तो ब्लॉकबस्टर का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से क्या है? नहीं, पब्लिक साइके में ब्लॉकबस्टर का डेफिनेशन तो वही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फिल्म देखने जाते हैं और वो फिल्मों की ज़्यादा टिकटें बिकती है। पर अगर आप मुझसे कहें कि मुझे क्या चूज़ करना है कि ब्लॉकबस्टर या हार्टबस्टर, तो आई विल चूज़ अ हार्टबस्टर। मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है कि जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा आपने कहा कि फिल्म याद में रह जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि फिल्म चले, 2 हफ्ते चले, अगले साल किसी को याद ही नहीं रहे, पैसा तो कमा ले मगर अगले साल याद ही नहीं रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। हम आज भी जो पुरानी फिल्मों को याद रखते हैं, मेरे हिसाब से वो दे बिग बिग फिल्म्स। आज मैं आपकी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रखेंगे। आई होप सो। नहीं, देखिए हम लोग एक्चुअली जब लिखते हैं तो खास कोशिश ये करते हैं कि उस टाइम कास्टिंग ना सोचे। मुन्ना भाई है तो ऑफकोर्स संजू रहेगा, वो तो डिसाइडेड है, संजू एंड अरशद विल बी डेफिनेटली देयर। पर क्या होता है जब आप लिखते हैं और आप एक एक्टर सोचने लगे, तो होता है कि आप उस एक्टर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। यू से यार ये अच्छा करेगा या ये अच्छा नहीं कर पाएगा, तो आप वैसे लिखने लगते हैं। आई थिंक राइटिंग शुड बी फ्री फ्लोइंग, कि आप लिख लो, उसके बाद कास्टिंग सोचो। तो अभी तो हमारा लिखने का प्रोसेस चल रहा है, कास्टिंग तक हम पहुंचे ही नहीं है। Raju, a follow-up question to that. Raju, so when you decided to work on the Sanju biopic, did you have Ranbir in mind right from the start? Yeah. See, now in case of biopic, yes, it was a question. See, biopic, what was happening that it's not a story we had to really write or create from scratch. When you're writing a story, you're creating and you're moving in many directions, and finally you reach a script. This script, when he heard it from Sanju, when he heard his life story from Sanju, we knew, okay, more or less this is it. So we had a script in mind and we had to think of an actor. So Ranbir definitely was the most obvious choice for us because he's a friend. No, we're going to touch everything. No, it will be part of it. Everything will be part of the biopic. But it's a way we say is the story. Everything will be. And without that, there's no story. That will be a part of his life. How important it is for a director to cut out from his or her last successful film, because we've always there have been directors who have actually gone out and made films under the pressure of maybe recreating the same magic of the last successful blockbuster, but they often meet with a debacle at the box office. So how important it is for a director to cut off from his or her last film?
See, films become successful, films can fail, whatever, but you really can't. Those are your life, those are your memories, those are your things which have happened. You really can't cut off from that. But we tend to look at every film as a new film, as a first film, and we strive as hard on any film. It's not that, oh, I've had a successful film, so I have to strive less hard. No, every film you have to strive as hard. Films, you will make films which will succeed, you might make films which will not succeed tomorrow. So, but if you strive less and if it fails, then there will be a problem. So there's no lack of striving. That's why we take so much of time. We are not in a rush to, at this stage we can pick up and say, okay, we can make one film every year, we can make 2 films every year, but after 3 Idiots, I took 5 years to make one film. So most people find me stupid. He says, you know, you're being very stupid, you can make so much of money, but I don't think any of us is striving to do that. We're striving to make films which we want to make and good films. Hopefully, we might succeed or fail, that's a different story altogether. But there's no lack of effort in whatever we were doing. देखिए, मुझे लगता है डायलॉग होने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम एक डायलॉग से सॉल्व हो सकता है. बातचीत से कोई भी इशू सॉल्व हो सकते हैं. अगर हम बातचीत से उसको सॉल्व ना करें, हम सिर्फ एक दूसरे को नीचा गिरा के दिखाने की कोशिश करें, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट. फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज कि देयर इज अ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट. उसको हम एक्नॉलेज करेंगे और हम अगर मिलके अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा. हम सरकार कहे कि नहीं कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, स्टूडेंट्स कहे नहीं ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दोनों अपने अपने घरों में बैठ के उसको सॉल्व एक दूसरे की तरफ ईगोइस्टिकली देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. आई थिंक वी नीड टू कम टुगेदर. द आंसर इज गेटिंग टुगेदर एंड सॉल्विंग इट. नहीं, मुझे नहीं लगता. मैं अभिजात लिखेगा थ्रिलर? पता नहीं अगर कभी ऐसा लगे कि कोई हाँ, इवन संजू की कहानी में थ्रिलर के एलिमेंट्स हैं या इवन हाँ, अभी आज जैसे हम बात कर रहे थे, सडनली मुझे याद आया कि 3 इडियट्स में भी 20वें मिनट पे सुसाइड है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है. पीके में ब्लास्ट है, सिर्फ उसका जूता रह जाता है. तो उन्होंने जब भी ये अटेम्प्ट किया है तो सक्सेसफुली हैंडल किया है. तो देयर इज अ ट्रिमेंडस ग्रेविटास टू सम ऑफ द फिल्म्स. ह्यूमर इतना होता है कि वो नोटिस नहीं होता, लेकिन वो एलिमेंट्स ऑलरेडी उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किए हुए हैं. तो कभी ऐसा मौका मिलेगा, कुछ मज़ा आ जाएगा किसी स्टोरी में, तो लिखेंगे. अभी जो काम हो रहा है, मुझे बहुत सारे कई लोग जो अभी अच्छा लिख रहे हैं. अब कल ही जूही चतुर्वेदी से मुलाकात हुई. वो ऐसा लग रहा है कि लोग नया कुछ लिख रहे हैं. और आई थिंक मुन्ना भाई MBBS के बाद एक तरीके से मुझे ये लगता है कि वो बिलीव राइटर्स का वो आया कि वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स एंड वी कैन सक्सीड. सो लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, ये विकी डोनर, पीकू, और भी क्वीन, यू नो, ये सारी फिल्म्स यूनिक लगी. राजू को और भी याद आएंगी. आई थिंक मुझे लगता है कि वक्त बदल गया. आप 10-15 साल पहले देखिए, 15 साल पहले का सिनेमा एक ही किस्म का सिनेमा होता था. हीरो हीरोइन, आइदर लव स्टोरी और एक्शन. उसी दायरे में उतने गाने, वही किस्म के गाने, वही स्विट्जरलैंड में जाके शूट करना. वो माहौल बदल रहा है. आज अलग अलग किस्म का, एक मसान भी बन रही है, एक टिपिकल मेन स्ट्रीम कमर्शियल, यू नो, इधर एक बजरंगी भाईजान भी बन रही है. हर किस्म का सिनेमा बन रहा है और लोग जा रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक वी आर लिविंग इन ग्रेट टाइम्स फॉर सिनेमा. सी आइडियली वन वुड वांट कि बेहतर तो सबके लिए हुआ कि एक ही फिल्म एक दिन पे आए. पर जैसा कि उस दिन मैंने कहीं शाहरुख ने कहीं कहा कि
52 हफ्ते होते हैं साल में और फिल्में बनती कुछ 200 से ज़्यादा, तो अब करेंगे क्या, कहीं क्लेश होगा ही होगा. I'm a very brutal man when it comes to scripts. Completely. The story is the thing for me. And that was a precondition with Sanjay, and I should say that he's been completely bold about it. That we've told him that we're not going to glorify you in any way. We're going to say the story as is. Because I'm aware that if I'm dishonest to the film, this is the question which is going to come every day to me, that you made this film because you're a friend to Sanjay. No. I want to be very true to the film. Once you see the film, you'll realize, oh God, we've really gone in. And Sanju is being very, very honest about it. Our precondition was that if you don't tell us the story honestly, you're not going to make it. अभी तो नहीं काश ना लगे, hopefully. हाँ जी. I think Wazir is releasing 8th. Vinod is the right man to ask that. I'm not that.